الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. پتمس درسس مز پڑھو اسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کرے پنہ گھرک تم خاص صفات بیان یم صفاتو سۭتۍ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن خانہ کعبہ متصف کورمت چھ. تتھ مز پڑھو اسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن چھ خانہ کعبہ ہس مز اکھ خاص کشش یا اکھ خاص اٹریکشن لکن خاطر تھٲمٕژ اور بیٚیہِ چھُنہٕ خانہ کعبہ باعث ثواب تہِ لکن خاطر بنومُت. اور بیٚیہِ چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن اتھ منٛز پرٛٮ۪تھ زِ یُس تہِ کانٛہہ انسان یا یُس تہِ کانٛہہ جانور چھِ اس کے لیے اس میں امن ہے. امہِ پتہٕ آیو حکم مسلمانن کہ یم اتھ منٛز مختلف آیات چھِ تِمو منٛز یۄس آیت بٔڑ بار چھِ مقام ابراہیم سُہ گژھِ یِنہٕ مصلیٰ بناونہٕ. اور بیٚیہِ پوٚر اسہِ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلامس آو حکم یا تمن نش آو عہد رٹنہٕ کہ تُہۍ کٔرۍزیو یہِ گرٕ پاک و صاف طواف کرن والٮ۪ن خٲطرٕ اعتکاف کرن والٮ۪ن خٲطرٕ اور رکوع تہٕ سجدٕ کرن والٮ۪ن خٲطرٕ. امہِ پتہٕ چھِ أزیُک درس اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ ارشاد فرماوان وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. تَمہِ خاص دعاؤک چھِ ذکر یُس دعا زن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامو تمہِ ساتن ٲس موٚنگمُت چھُ رۄب العالمیٖنس ییٚمہِ ساتن تِمو پنُن عیال ترٛایو اتھ بے آب و گیا وادی منٛز. پٔتمٮ۪ن درسن منٛز کریو مےٚ تۄہہِ عرض کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے اوجل ہو گئے تھے. ییٚمہِ ساتن تمن نش یعنی بالکل تتھ موڑس پٮ۪ٹھ وٲتۍ تمہِ ساتن چھِ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا منگان کہ اے اللہ مےٚ کٔرٕے پنٕنۍ ضروٗریت یا پنُن یُس زن اہل عیال ایک غیر وادن غیر ذی زرع بے آب و گیا وادی میں نے ان کو آپ کے نام پر اور آپ کے بھروسے بسایا ہے. تمہِ پتہٕ چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا منگان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. یاد کٔرِو سُہ وقت یا یاد کرُن لایق چھُ سُہ وقت ییٚلہِ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامو پننِس رۄبس موٚنگ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا کہ اے پاک خداے اے عظمت والے رب یہ شہر بناتن ژٕ امنُک شہر. یعنی ابھی تو شہر کیا وُنہِ اوس نہٕ بستی ہُنٛد تہِ تصور کہین مگر امہِ ساتن چھِ دعا منگان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے بار الہ خدائے یہ شہر بناتن ژٕ امنُک شہر. یعنی اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بساون ژٕ یہ شہر تاکہ یہ بنہِ بوڑ شہر. اور یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ
बल्कि ये बनाउन अमनुक शहर। वर्जुक अहलहु मिन अथ-थमरात, और इसमें उलमा ने एक नुक्ता ये भी लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यम सातन दुआ मोंग रब्बुल आलमीनस कि ज बनाउन सा ये शहर, ये बनाउन अमनुक शहर यानी बलदिल अमीन। तो इसमें उलमा ने नुक्ता लिखा है कि अकिस बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला सन खास इनामात आसन, मगर सारे खुद बोड़ इनाम कि तथ बस्ती मज अमनो अमान। बल्कि यम सातन मुशरिकीन मक्काहन यम सातन अल्लाह तबारक व तआला वारिया पन इनामात याद प्यान तथ मज ये व आमनहुम मिन खौफ, यानी मैंने आपको खौफ की हालत में भी अमन दिया। गो उलमा किराम लेखन कि कुन मुल्कस मज, कुन शहरस मज, कुन बस्ती मज अमन आसन, ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से सबसे बड़ी नियामत उस बस्ती या उस शहर के लिए। अवे मज अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यह नियामत कि अत शहरस मज बनाउन अमनुक शहर। वर्जुक अहलहु मिन अथ-थमरात, और जो वहां के रहने वाले होंगे ये अतिक में बस्किनदार बन गए, क्योंकि पहले तो दुआ मांगी थी बसाने के लिए, फिर दूसरी दुआ मांगी इसी के साथ वर्जुक अहलहु मिन अथ-थमरात कि अय बारिला खुदाई युस यम अतिक बसकन वाल या बस्किन आसने तुमन कर अता समरात, यानी उनको मुख्तलिफ फलों का यजन या मुख्तलिफ मेवों की सूरत में रिजक हम पहुंचाइए। मगर अल्लाह ताला फरमा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी वर्जुक अहलहु मिन अथ-थमरात, यानी यम ते अतिक अहल आसन या यम ते अतिक बस्किनदार आसन, ए बारिला खुदाई तुमन सोज तो मुख्तलिफ किस्म फल बतौर रिजक। मगर शरत हो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, युस पतिम दुआ तथ मज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदायस मोंगमुत कि रब्बुल आलमीन वयो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैंने आपको तमाम आलम के लोगों के लिए क्या बनाया है, इमाम। मगर सीधी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, आला व मिन दुर्रियती, क्या बारिला खुदा ये वादशा मेनिस जुर्रियत से तब क्या आया वन आला ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, जालिमों के लिए अल्लाह का ये वादा। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ मोंग कि ए बारिला खुदा ये शहर बनाजन अमनुक शहर, बी यम अतिक बस्किनदार आसन तुमन सूज रिजक फलन हिंद शक्ल, मगर वनुन कि तुमन यो सूज रिजक यम जन खुदायस और यम जन मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यम अल्लाह और आखिरत के दिन पर जो ईमान, ये असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो पिछली दुआ का डर है, यानी खूस खूस रब्बुल आलमीन मगन दुआ कि खुदाई गश्न होत गई में गलती कि मैं वन तत सवाल कर मैं पन्नी जुर्रियत, एक मुहिबाना डांट वहां पर पिलाई गई किनको, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इसलिए उस डर की कैफियत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब रिज़्क का सवाल किया तो उसके लिए कैद लगाई कि आप उनको रिज़्क दीजिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला वमन कफर, अल्लाह तबारक उलमाए किराम लिखें अल्लाह तबारक तआला ने जैसे मुस्कुराते हुए वापस जवाब दिया आला वमन कफर, अच्छा तुमन मतलब क्या वन यमो कुफर को या जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला फरमान फउम्मतिउहु कलीलन सुम्मा अज़्तरहु इला अज़ाबिन नार, इस दुनिया की इस कलील जो ये नियामतें हैं इनमें हम उनको भी हिस्सा देंगे। यानी होती ओस अल्लाह तबारक तआला यजन ओस इमामत, उसके लिए तो कैद अल्लाह ताला ने खुद से लगा दी कि इमामत हर किसी को नहीं मिलेगी, बल्कि इमामत सिर्फ उसको मिलेगी जो उसका अहल होगा। मगर जब रिज़्क का सवाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया और खुद से उसके लिए कैद लगाई ईमान और अल्लाह पर ईमान और आखिरत के दिन पर ईमान लाने की, मगर अल्लाह ताला मुन्नस ये जन ये दुनिया नियामत छ यम दिम बह यम नियामत कमन, ये मैं वफूर तादाद में किनको दूंगा, इन काफिरों को भी दूंगा। अल्लाह ताला को इधर क़ाला वमन कफर फउम्मतिउहु क़लीला, हम इस दुनिया की कलील इस जो नियामतें हैं या बहारें हैं इनमें हम उनको भी मजे लूटने देंगे। यानी दुनिया खतर लफ्ज कर इस्तेमाल कुस कलील, कलील आमद कुरान पाक में वारियन जगह, सारी दुनिया अल्लाह ताला वोन कुल मताउ दुनिया कलील, यानी दुनिया का जो ये साजो सामान है ये बिल्कुल थोड़ा है। बल्कि हदीस में आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अगर इस दुनिया की वक़्त अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होगी, अगर दुनिया वक़्त खुदा नजर में ऐसे मई सिंदिस पारस बराबर, तो अल्लाह किसी काफिर को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं करता। यानी तेल कहने खुदा ताला क्या
काफिरन अख गाम या अख गोल त्रेश ते अता, वो इसका मतलब है अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। बल्कि सूरह ज़ुख्रुफ में अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 33 में फरमान वलौला अन यकून नास उम्मतन वाहिदा, अल्लाह तबारक व तआला फरमान वलौला अन यकून नास उम्मतन वाहिदा, अगर हमें इस बात का डर ना होता कि पूरी इंसानियत कुफ्र करेगी, यानी अगर ना अमि कथ हुंद आसे खौफ कि सारी इंसान यम गसन कथ मज मुब्तला कुफ्रस मज, तो अल्लाह ताला क्या फरमान वलौला अन यकून नास उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन युकफर बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफा, तो हम क्या करते अगर हमें दुनिया के तमाम लोगों के कुफ्र में मुब्तला होने का खतरा न होता, तो हम इन कुफार के घरों को, उनकी छतों को हम सोने और चांदी का बनाते, यानी इस दिवाह मन जिमजन काफिर छ तिहज जिमजन घरन इन छत वो हम किसके बनाते, चांदी के बनाते, व मआरिज अलैहा यज़हरून, और जिसन उमन पे कुम जो इनको चढ़ने वाली सीढ़ियां हैं उनको भी हम किसकी बनाते, उसको भी हम चांदी और सोने की बनाते, वाली बुयूतिहिम अब्वाबा, और जो इनके घरों में आगे से दरवाजे लगे होते हैं, यानी फ्रंट दरवाजे जिसन आसन, व सुरूरा, और जो बेसमेंट होती है जिस पर वो आराम करते हैं, या फिर कश्मीर होना वेरंडा आज, अल्लाह ताला फरमान अलैहा यत्तकीऊन व ज़ुख्रुफा, जिसके साथ वो टेक लगाते हैं, व ज़ुख्रुफा, हम उसको सोने का बनाते हैं, यानी कुमन काफिरन। अल्लाह ताला सीधी फरमान व इन कुल्लु दालिका लमा मताउल हयाति दुनिया, ये तो थोड़ा सा दुनियावी सामान है जो हम इनको अता, यानी ऐसी ऐशो अशरत को भी अल्लाह ताला कहता है कि ये तो थोड़ा सा दुनिया का सामान है जो हम उनको अता करते। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत जो है वो बहरहाल किन के लिए है, वो इसका मतलब है कि आखिरत इससे भी कोई बड़ी चीज है। बल्कि एक ही चीज अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमान बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, अवै अतन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी अल्लाह से कि ए अल्लाह युस पे आखिरत के दोस्त पे ईमान अनि तुमन सूजी रिज़्क वफूर फलन हिज शक्ल में करजा अता, मगर अल्लाह ताला मुनस जो काफिर हैं उनको भी मैं दुनियाई इन ऐशो अशरत और नियामतों से हिस्सा जरूर, बल्कि उनको मुत्तकीन से ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि उनके लिए तो बस यही दुनिया की जिंदगी है। ये सुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का वो समरा है कि वुशन बज़ाहिर मक्का मुअज़्ज़मा में कोई फल वहां पैदा नहीं, मगर दुनिया तमाम फल यमजन चाहे किसी भी मुल्क में किसी भी शहर में वो प्रोड्यूस होते हों, बहरहाल तुमन हिंद समरू यूजन वो कहाँ पहुंचता है, वो तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में ऐसा असर डाला कि तुमको ये अकेशन अल्लाह तबारक व तआला ने उस मखाने काबा को या मक्का मुअज़्ज़मा को तमाम फलों से मालामाल कर दिया। अल्लाह ताला फरमान सुम्मा अज़तरुहु इला अज़ाबिन नार, हाँ दुनिया की ऐशो अशरत दुनिया की रोने के और बहारे हम कुफार को भी देंगे, सुम्मा अज़तरुहु इला अज़ाबिन नार, इसके बाद हम इनको अजाब की तरफ कोशा कोशा बढ़ाएंगे, यानी पतानो को इस लमित कोकुन अज़ाबिन नार, यानी आखिरत का ये मामला है। वह बिसल मसीर, और कितना बुरा ठिकाना है नार यानी जहन्नम। अन पछ अल्लाह तबारक व तआला फरमान सो वाका कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस कोर खाने काबा तामीर, बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं वइद यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, याद करो उस वक्त को, यानी याद करो उस वक्त या याद थाउन लायक उस वक्त इद यरफउ इब्राहिम, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुलंद कर रहे थे क़वाइद मिनल बैत, हमारे घर की बुनियादें, व इस्माईल, और कौन इस्माईल अलैहिस्सलाम। बहरहाल अथ आयत के टुकड़ों में जिक्र इशारा जरूरी समझिन। सबसे पहला इशारा ये है लफ्ज इस्तेमाल हुआ वइज यरफउ इब्राहिम, यो में ब्रोट, यानी अत आन वन ये कि याद करियो सो वक्त यम साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम एम खाने काबा बुनियाद त्रो, वो नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया यरफउ, यरफउ माने बुलंद करना, यानी ये जो बुनियाद थी वो तो पहले से ही बनी हुई थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उन बुनियादों को तामीर किया या बुलंद किया। वो इसका मतलब है कि खाने काबा तामीर यजन वो पहली बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं की है। बहरहाल तमे वोन में कि खाने काबा तारीखी यूजर पास मंजर तमी तामीर कित पड़ गई, मगर यहाँ पर कहा जाता है वइज यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, याद करियो सो वक्त या याद करन लायक सो वक्त ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तमसन फर्जन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बुलंद अस करन अरफा अस करन खाने काबा यम जन देवार। दयम का
खाने काबा की जो तामीर, इससे पता चलता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली बार नहीं की। अलबत्ता मैं वन तह ओतर कि खाने काबा किस तामीर गोमुत, एक अहम बात उसमें यह भी रह गई थी, सह गई प्रेत मुसलमानस पता आसनी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिश खाने काबा ची तामीर मज अक सातनस हिस्स निमुत। खाने काबा की तामीर दौरी मुशरिकीन मक्का तामीर कोर खाने काबा, उस वक्त हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, यानी 35 वरी तम सात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु उम्र मुबारक यम सातन खाने काबा तामीर नव कर मुशरिकीन मक्का हो। उस वक्त कहा जाता है रिवायत में आमद कि खातूना आकस वो हमेशा दूनी देती थी, किसको? खाने काबा को। दूनी को मतलब सस्त खुशबू वुशबू लागन। बहरहाल खुशबू के लागन लागन दपन तच चरा की वजह से या कोई कुछ गिर जाता है, अच्छे खाने काब किस पर्दस हवन नार, तो उस आग की वजह से ये सारा ये ढांचा खाने काबा का वो खाकिस्तर हो जाता है। एक रिवायत ये है। एम पत बनावन कुम नाई, ये मुशरिकीन मक्का पर नाई कर खाने काबा, और एक रिवायत में है कि सैलाब की वजह से उसकी दीवारें बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थी, इसलिए मुशरिकीन मक्का ने उसकी तामीर नौ की। मगर अ तामीर नवस मज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पान बनफ्स नफीस अमकिस तामीरस मज हिस्सा निमुत। उस वक्त रसूलुल्लाह की उम्र कितनी थी? 35। और हजर असवद को जिस वक्त नस्ब करने का मामला आया था, तो उसको रसूलुल्लाह ने अपने दस्ती मुबारक से वहां पर नस्ब किया है। बहरहाल जिसमें एमसा वन कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो सबसे बरगुजीदा हस्ती तामीर वो खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये लफ्ज करना इस्तेमाल वाइज यरफउ इब्राहिम अलक़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, याद करिए सो वक्त यम साथ हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तम सने फर्जंदन खाने काबा ची तामीर ये दीवार उनको। और मैंने आपसे कहा था कि अमिच बुनियाद ये इसकी निशानदही हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को की। बल्कि सूरह हज में अमुक जिक्र व इस बवाना लि इब्राहिम मकानल बैत, याद करो उस वक्त को जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस घर की बारे में निशानदही की। वो अमीन निशानदही केम कर जिना हजरत अल्लाह ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए से, मगर इसको तामीर किया किसने? हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने। दयम कथ अतन इशारत आयतस मज आमुच, काम करने वाले कौन कौन थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल यम सातन जाय तम सातन कजा उम्र मुबारक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 86 66 वरी। तम पत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़ ती गसन और वो जवानी को पहुंचते हैं, फिर निकाह भी करते हैं, फिर पहली जौजा को तलाक भी देते हैं, फिर दूसरी जौजा से शादी करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितना ऐसे काफी बूढ़े हो चुके होंगे, मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को तामीर करने की निस्बत की, काम के मैं ज्यादा कर जाहिर तौर पर जवान जो होगा हजरत इस्माइल, उसी ने तो ज्यादा काम किया होगा। और पत्थर डो डो कर लाते थे कौन? हजरत इस्माइल। और मैंने आपसे कहा रिवायतन में हजरत असवद को भी किसने लाया? हजरत इस्माइल ने। मकाम इब्राहिम को भी किसने लाया? हजरत इनको बजाहिर काम तो ज्यादा किसने किया? हजरत इस्माइल ने। मगर कुरान पाकन वन वइज यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद, याद करिए सो वक्त ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एमची दीवार बुलंद कर मिनल बैत हमारे का व इस्माइल, बाद में जिक्र आया किसका? यानी इस्माइल सुन जिक्र आ ज़िम्नन। इस काम को मंसूब किसके साथ किया गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये हमारे लिए बुनियादी तौर पर तरबियत के लिए है कि जब भी कोई काम हो जिसमें बड़े भी शरीक हूं और छोटे भी शरीक हूं, या मोल आ शरीक भी इसको, बहरहाल काम की निस्बत बड़ों की तरफ होगी। यानी लकट निन तमिक क्रेडिट क्या, बल्कि क्रेडिट कैसे केमिस जिटिस या बड़िस। बल्कि रिवायत में आता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसा अक्सर मशवर हेवन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के साथ कौन मशवरा करते थे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और सूद फरमा हजरत उमर फारूक मैं भी उन मशवरों में शामिल होता था। बुत मशवरों में शामिल। ये नहीं कहा हजरत उमर फारूक ने कि रसूलुल्लाह मैं तो भी अबू बकर सिद्दीक मशवर है, ताकि इस बात का कहीं पर मुझसे ये शाइबा ना हो कि मैंने अपने दर्जे को किन के बराबर कर दिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। वो ये सान खतर तरबियत कि यम सातन ति काम यी करना
तमिक क्रेडिट गस दिन जिठिस जवान सिर्फ काम करेंगे। तवे अल्लाह ताला फरमान वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। अच्छा, ये तो हो गया खाने काबा की तामीर के वक्त किस तरह तामीर किया गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, एम पत वही अल्लाह तबारक व तआला ने अमिश तफसील किए कि कितना बड़ा खाने काबा बनाया गया, किन पत्थरों से बनाया गया, गारा कहाँ से लाया गया, सब दलील वही या सब तफसील वही अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि उसमें तो हमारे लिए हिदायत का कोई सामान कुरान पाक वन सिर्फ तुम कत यथ उम्मतस खतर क्या हिदायत। इसलिए अब उन दुआओं को यहाँ पर नकल किया गया जो दुआएं उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी, यानी खाने काबा तामीर कर यम दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मांगी, उन दुआओं को नकल किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। दुआ क्या? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना ऐ सानी खुदाई, मगन कुछ दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल, वक्त का नबी और वो भी वक्त का नबी, यानी नबी मोल नबी नचुत, और काम कौन सा कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला के घर की वो तामीर कर रहे हैं। वन तो वत अम पत आजिज़ी तो इनकी सारी वुचु क्या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ सानि खुदाया ये इबादत या ये काम या यस करन ये काम तामीर ये था तो सान तरफ कबूल। यानी ये हमारे लिए तरबियत है। सबसे अफजल जो लोग होते हैं उम्मत में सो कुछ आसन नबी। अब नबी वक्त का सबसे अफजल इंसान और सबसे अफजल काम कर रहा है वो अल्लाह ताला के घर की तामीर, मगर आजी और इनकी सारी देखिए क्या है, अम पत्तिश करन दुआ खुदायस कि ए बारिला खुदाया सन ये अमल थस पन्निस बारगाहस मज कबूल। ये हमारे लिए दर्स इबरत है। हम आज के लोग कुन सात नफल जरकस पढ़ दपा शायद बने कतब तो अबदाल, कोई थोड़ा सा दीन का काम करते हैं, कुन सात घर रसीद हेत उश्र खतर या कुन सात घर रसीद हेत मस्जिद खतर हता सुन पति हम समझते हैं कि हमने कोई दीन का बड़ा किला फतह किया, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में हमें यह पैगाम मिलता है कि यीचा अजीम इंसान यम खलूस सान और यूता क्या वन अल्लाह ताला संदिस पूरे मोहब्बत में सरशार गसित अल्लाह के पाक घर की तामीर करते हैं, लेकिन दिल इतना लरजता है कि इसके बावजूद भी इनकी जुबान पर क्या आता है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए बारिला खुदाया सान ये मेहनत सान ये अमल थस पन्निस बारगाहस में कबूल, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला भी है, यानी इस दुआ को सुनने वाला भी, व अलीम और तू जानने वाला भी है कि हमारी नीयत इसमें क्या है। अब वो रिवायत में आमद कि यम ते रवायत में क्या बोन कर यम ते बुजुर्ग असमित या यम ते अल्लाह ताला से नेक बंद, वो इस तरह से नेकी करते थे, वो लरजते थे कि ये नेकी या ये अमल ये गए बुथिस लाइन, क्योंकि हमें तो हुक्म है सुब्हानका मा अबदनाका हक, यानी इबादत करने के बाद भी अल्लाह के नेक बंदे क्या कहते हैं, सुब्हानका मा अबदनाका हक, ऐ बाला खुदा तुझे पाक हमने आपकी बंदगी का वो हक अदा नहीं किया जैसे आपकी बंदगी करने का सुब्हानका मा अरफनाका हक मारिफतिक, ऐ बाला खुदाया तुझे पाक आपकी मारिफत हमने उस तरह हासिल नहीं की जिस तरह आपको पहचानने का हक। इधर पर सुब्हानका मा शकरना का हक शुक्री, सुब्हानका मा ज़करना का हक ज़िक्री, ये असल में बंदगी का या गुलाम होने का असल में एक बंदे का ऐसा तवश रवायत में आमद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया सारे खुद अजीम हस्ती, क्या उससे ज्यादा किसी को अल्लाह का तकर्रुब और कुर्ब हासिल हो सकता है? सवाल सब्दन बल्कि तमिक तसव्वुर त जब वो नमाज फर्ज नमाज पे मसनून अज़कार सारे खुद गॉडनिक जिक्र क्या रसूलुल्लाह कर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ये नमाज मकला, फिर इसके बाद क्या कहते थे अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा, यानी ये इबादत जो मैंने की ये तो मेरी तरफ से टूटी फूटी इबादत है, अल्लाह तो इससे भी बहुत बड़ा है। तेम पर क्या इस पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बाज़ाहिर तो नेकी का काम किया, नमाज पढ़ी मश बना इस्तिगफार चीवन कारण बनास पे, मगर रसूलुल्लाह के अमल से पता चलता है कि फर्ज के बाद वो क्या करते थे, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार पढ़ते थे। ये क्या है इस्तिगफार पढ़ इस्तिगफार इसलिए पढ़ते थे कि जो हक या जो हमें असल में इबादत करनी थी अल्लाह की, वो क्या उस दर्जे की इबादत असल में ठीक है अल्लाह तबारक व तआला से शान च मायुजन या अबद बंद उसकी इबादत से वराउल वरा, उस
سٹیج پر یا تات منصبس پہ ہیکہ انسان تصور توے رسول اللہ وسلم بندگی ہند عاجزی ہند کران اظہار کم سی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اے بار اللہ خدا بس چین یعنی بس معافی منگن میں استغفار طلب کرتا ہوں کیا اس کے بعد کیونکہ یہ عبادت وہ شاعن شان نہیں ہے جو آپ کی اصل میں شان یہ ابراہیم علیہ السلام اتن کرن بظاہر ایک نیکی کا کام بظاہر یژہ بڑ کام وقت عظیم پیغمبر مگر زبان سے کیا کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے اور یہ ہماری تربیت کے لیے بھی ہے کہ انسان اس کو اپنی عبادت پر یا اپنے اعمال پر کوئی گمنڈ امس گھس گمنڈ آسن کی بلکہ اکس روایت میں آمت ات پہ کر اختتام حدیث میں آمت فرمو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک ساتنس دعا منگن اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اے اللہ خدای بچ آسان حسابک سوال کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مطلب ہے اور تو کیا مانگن یہ خدایس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جواب مرحمت فرمایا فرموس کہ جس شخص کی قیامت میں باز پرس ہوئی یا جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا سگو اب آسان حساب یہ ہے حساب یسیرا اس کو کہیں گے اس کے دفتر پر سرسری نظر ڈال دی جائے گی اور اسے جانے کے لیے کہا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پر حضرت عائشہ صدیقہ اے عائشہ کہیں تی انسان گھنٹے جنتس مز توتان جب تک کہ اس پر اللہ کی نظر رحمت نہیں عائشہ صدیقہ فرمو یا رسول اللہ تو ہی میں بھی تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ کا خصوصی فضل یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تو ہماری اور آپ کی اس میں بات ہی اس لیے اکس انسان گھنا آسن پنن عملن پہ یا پنن یم زن کرتو ان پر اس کو رشک یا ات پہ گھنا آسن غرور کی بلکہ عبادت کا غرور سب سے بڑا غرور ہے شیطان کو ہلاک ہی کم سے اپنی عبادت کے غرور اور آخری کا سگئی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اس نے ان عبادتوں کو یا ان امتحانات کو کیا کیا پاس بالکل 100% بات پھر اس کے بعد اس کو کس کی سعادت مل گئی خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کی تو اس میں علماء نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ یہ انسان اخ نیکی کارن بہرحال اگر تم خلوص سانی نیکی آس کرمت یا اگر تم رچ نیتی سانی نیکی آس کرمت تو یہ نیکی اس کو دوسری نیکی کی ترغیب دے گا یعنی یم ساتھ یہ اخ نیکی کر اللہ تبارک و تعالیٰ دی امس ضرور توفیق کہ امی نیکی سے ملے امس کمس بھی نیکی ہن تک اور الٹ بھی اس کا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسرے گناہ میں بھی ملوث کرتا ہے اگر وہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے بہرحال رب العالمین اس مگو دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہند نقشے قدمس پر عمل کرنے توفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین